Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to Unacademy. This is a very special class on important figures of speech, which means rhetoric. तो मैंने rhetoric के क्लास पिछले हफ्ते में स्टार्ट की थी, लेकिन बीच में मैंने कल्चरल स्टडीज भी स्टार्ट कर दिया था, तो ये टॉपिक बाकी रह गया था। तो कल एक क्लास मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ इसके ऊपर, और आज थर्ड पार्ट है rhetorics का, ठीक है। So today we will discuss some other important figures of speech. Okay. So yes, but before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Vrishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 3 times and also qualified West Bengal SET examination. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. Now I will talk to you about Unacademy. So Unacademy, as you all know, it is the largest learning platform in India. So if you want to access Unacademy, then first of all, you need to download Unacademy Learning app from Google Play Store. And then you should click on the category of NTA UGC NET. And if you want to take subscription, then you can go for 12 months or 24 months subscription plan. If you use my referral code BRISHTI10, you will get 10% extra discount in your overall price. And as per the new initiative of Unacademy, you can also use my referral code to unlock your free classes. You can also do that. So another thing is that the upcoming batch for NTA UGC NET exam will start very soon. So please take your subscription as early as possible. And the price hike has been extended by a week, so please take your subscription according to the current price. And this is my profile on Unacademy Learning app, so please click on the follow button so that you will be notified every time I will post a new class. And these are the links of the 2 Telegram channels, so those of you who have not yet joined the Telegram channels, please join it as early as possible so that you will be notified every time I will post a new class. So, today we will talk about figures based on contrast or difference. तो बहुत सारे टाइप्स के हैं रिटोरिक्स का, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फिगर्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस. द वेरी फर्स्ट टाइप इज एंटीथेसिस. तो एंटीथेसिस में क्या होता है? एंटीथेसिस जक्सटापोजेस टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज. सो एज आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट, तो एंटीथेसिस में क्या होता है कि टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया, दोनों अपोजिट आइडिया को हम जक्सटापोज कर रहे हैं एक साथ, ठीक है. सो एंटीथेसिस इज एंटीथेसिस मींस जक्सटापोजिंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज. ओके, two ideas, maybe two clauses or two words are placed in a balanced form. So एक बैलेंस होना चाहिए. जक्सटापोज मतलब सिर्फ एक के पास एक को हम लिख रहे हैं वो नहीं. जक्सटापोज मीन्स कि एक बैलेंस्ड तरीके से आपको यूज करना है एक ही सेंटेंस में, ताकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, या फिर उसका कोई मीनिंग रहे एटलीस्ट. सो इन दैट वे यू मस्ट यूज द टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज इन अ बैलेंस्ड फॉर्म. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंटीथेसिस में क्या होता है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को या फिर दो क्लॉजेस को और फ्रेज को हम एक साथ यूज कर रहे हैं बैलेंस्ड फॉर्म में, ठीक है. इट हेल्प्स टू एम्फसाइज समथिंग एंड एनहांसेस द ब्यूटी ऑल्सो. तो किसी भी पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए या फिर सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है उसका ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए हम ये यूज करते हैं ये टर्म, राइट. So it helps to emphasize something and enhances the beauty also, right. So used in the same sentence with same grammatical structure. तो एक ही सेंटेंस में यूज होना चाहिए और एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ठीक है. ये एंटीथेसिस का कंडीशन है इन दैट सेंस. So two contradictory ideas you definitely use, but it must be used in one single sentence and within the same grammatical structure. So at that point the concept of balance comes कि आपको बैलेंस रखना है. एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक ही मतलब सेम सेंटेंस में आपको ये यूज करना है इस एंटीथेसिस को, ठीक है. ओके, सो हियर इज सम एग्जांपल. कौन सा एग्जांपल है? ही इज नॉट अ मास्टर बट द स्लेव ऑफ हिज पैशन.
तो अब देखो, मास्टर भी कह रहे हैं, स्लेव भी कह रहे हैं, दोनों अपोजिट आइडियाज है, लेकिन इस तरीके से सेंटेंस में है, लेकिन इसे हम ऑड ना लगे, राइट। सो ही इज नॉट अ मास्टर बट द स्लेव ऑफ हिज पैशन। सो सेंटेंस एक ही है, यहाँ पर एक कॉमा है, राइट, और यहाँ पर फुल स्टॉप है। सो एक ही सेंटेंस में एक ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में देखो, कोई एक्स्ट्रा टेंस का यूज नहीं हो रहा, कोई एक्स्ट्रा ग्रामेटिकल रूल्स का यूज नहीं हो रहा, जो सेंटेंस में है उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम और एक आइडिया को प्लेस कर रहे हैं, राइट। सो ही इज नॉट अ मास्टर बट द स्लेव ऑफ हिज पैशन। Okay, that is one example. So master slave, two contrasting ideas. ठीक है. Next is better to reign in hell than to serve in heaven. Very famous line from Paradise Lost. आप सभी जानते हो, सेटन का स्पीच से है. तो better to reign in hell than serve in heaven. अब देखो डबल कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है. रेन के साथ सर्व एंड heaven के साथ hell. सो इतने सारे कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज एक साथ है एक सेंटेंस में. बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, एंड इट क्रिएट्स अ मीनिंग. इट एक्चुअली एम्फसाइजेस समथिंग. ओके, कि हम स्लेवरी नहीं चाहिए हमें, तो इस बात को एम्फसाइज करने के लिए ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हमने बोला, राइट. मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. सो मैन एंड गॉड, टू अपोजिट आइडिया, प्रोपोज एंड डिस्पोज, टू अपोजिट आइडियाज. ठीक है. नेक्स्ट इज टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन. तो देखो आर मतलब मिस्टेक, तो मिस्टेक और फॉरगिवनेस दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, एंड ह्यूमन और डिवाइन ये दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन एक बैलेंस्ड है. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है, लेकिन इसी तरीके से प्रेजेंट किया गया एक सिंगल सेंटेंस में, ताकि एक बैलेंस रहे. टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन. नेक्स्ट इज लाइफ इज शॉर्ट बट आर्ट इज लॉन्ग. वेरी फेमस सेंटेंस, आर्ट्स लॉन्गा विटा ब्रेविस, जो लैटिन कोट है. तो लाइफ इज शॉर्ट, तो देखो शॉर्ट के साथ लॉन्ग और लाइफ के साथ आर्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी है. ठीक है. लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग. तो देखो आइडियल और रियल कॉन्ट्राडिक्टरी है, लव और मैरिज कॉन्ट्राडिक्टरी. ठीक है. तो लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग. now देखो दोनों आइडियाज है, एक ही सेंटेंस में है, लेकिन इन अ बैलेंस्ड फॉर्म में है. सो एंटीथेसिस का मतलब है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को और वर्ड्स को और एनी काइंड ऑफ फ्रेज को आप यूज कर रहे हो एक ही सेंटेंस में, लेकिन उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, उसके अंदर एक बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ही ग्रामेटिकल रूल्स के अंदर एक ही सेंटेंस के अंदर यूज होगा, तो उसे हम कह रहे हैं एंटीथेसिस. ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन क्या है? वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. Words contradict each other. Two opposite words are placed side by side, extreme form of epigram, and the purpose is to intensify some idea. तो एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरोन में थोड़ा डिफरेंस है. एंटीथेसिस में भी क्या हो रहा है कि ऑपोजिट आइडिया को हम जक्सटापोज कर रहे हैं, लेकिन एंटीथेसिस में एक सेंटेंस में होता है. ठीक है, एक सेंटेंस में होता है और मे बी साइड बाय साइड ना हो. फॉर एग्जाम्पल आप पिछले एग्जाम्पल्स को अगर देखो, तो ये मास्टर स्लेव, ये हम साइड बाय साइड नहीं लिख रहे मास्टर स्लेव, राइट, लेकिन एक सेंटेंस में है. लेकिन ऑक्सीमोरोन का मतलब है कि दोनों ऑपोजिट वर्ड हम साइड बाय साइड लिखे, उसके बीच में कुछ वर्ड्स और नहीं है. आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, नो लाइट बट रैदर डार्कनेस विजिबल. दिस इज वेरी फेमस डिस्क्रिप्शन ऑफ हिल इन पैराडाइज लॉस्ट, राइट. सो ये सेंटेंस देखो, नो लाइट बट रैदर डार्कनेस विजिबल. नाउ टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, राइट, डार्कनेस एंड विजिबल. तो अगर डार्क ही हो आसपास, तो आपको विजिबिलिटी कैसे होगा? डार्कनेस में तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता. तो आप कह रहे हो कि डार्कनेस है और आप कह रहे हो विजिबल भी है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है, लेकिन हमने जक्सटापोज कर दिया एकदम साइड बाय साइड. डार्कनेस और विजिबल के बीच में कुछ नहीं है. ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, दोनों साइड बाय साइड वी आर प्लेस्ड. सो दैट इज ऑक्सीमोरोन. जब कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को हम साइड बाय साइड प्लेस करते हैं, तो उसे हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं. लेकिन एंटीथेसिस में साइड बाय साइड नहीं होता, एंटीथेसिस में एक सेंटेंस पर होता है, राइट. द कॉमेडियन इज सीरियसली फनी. तो देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, हम सीरियस भी कह रहे हैं, हम फनी भी कह रहे हैं, लेकिन हम जक्सटापोज कर रहे हैं एक साथ टू एम्फसाइज समथिंग. ओके. नेक्स्ट, ही लीड्स अ लाइफ ऑफ एक्टिव आइडलनेस. सो एक्टिव इज जस्ट ऑपोजिट टू आइडलनेस. तो एक्टिव भी है, आइडलनेस भी है, हम जक्सटापोज कर रहे हैं विदाउट एनी वर्ड इन बिटवीन. दैट इज ऑक्सीमोरोन. द बुकफुल ब्लॉकहेड इग्नोरेंटली रेड. बुकफुल ब्लॉकहेड, आप बुकफुल भी बता रहे हो, जो बुक भी पढ़ रहे हैं और वो ब्लॉकहेड भी है, उसका कोई दिमाग ही नहीं है. इग्नोरेंटली रेड. सो जो इग्नोरेंट है वो रीड कैसे करेगा?
तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को आप जक्सटापोज कर रहे हो। शी इज क्लियरली कंफ्यूज्ड, देखो इसका मीनिंग है क्लियरली कंफ्यूज में टोटली कंफ्यूज्ड। तो आप क्लियर भी कह रहे हो और आप कह रहे हो कि कंफ्यूजन भी है, तो अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर कैसे होगा, राइट? So that is the thing. That is how the two ideas are juxtaposed. The room is filled with a deafening silence. Immense silence को मीन कर रहा है। तो डीफ कैसे होता है? डीफ कोई आवाज से ही होता है, लेकिन साइलेंस का तो कोई आवाज नहीं। तो साइलेंस कैसे एक पर्सन को डीफ कर सकता है ना? टू अपोजिट आइडियाज है, टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है, लेकिन हम साइड बाय साइड बिठा रहे हैं, तो दैट इज ऑक्सीमोरन। क्लियर है? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज एपिग्राम। एपिग्राम क्या चीज है? एपिग्राम इज ए ग्रीक वर्ड मीनिंग इंस्क्रिप्शन, इंस्क्राइब करना, उसमें से आया है एपिग्राम। इट रेफर्स टू एनी शॉर्ट एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशन। सो कोई भी शॉर्ट और प्रिसाइज एक्सप्रेशन को हम एपिग्राम कहते हैं। तो बेन ने एक डेफिनेशन दिया एपिग्राम को, इट इज एन अपैरेंट कंट्राडिक्शन इन लैंग्वेज व्हिच बाय कॉजिंग अ टेम्पोररी शॉक राउजेस आवर अटेंशन टू सम इंपॉर्टेंट मीनिंग्स अंडरनीथ। तो बेन का क्या मतलब है कि एपिग्राम में अपैरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है, डेफिनेटली अपैरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन ऐसे दिया गया है कि वो हमको एक झटका दे, एक शॉक दे, ताकि कुछ पर्टिकुलर मीनिंग के ऊपर हमारी अटेंशन ड्रॉ हो सके, राइट? सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एपिग्राम, कि एक टेम्पोररी शॉक आपको मिल सके, एंड इन दैट सेंस इट इज राउजिंग आवर अटेंशन टू सम इंपॉर्टेंट मीनिंग्स अंडर, तो उसके अंदर कुछ और मीनिंग है, तो उसे समझने के लिए हमें इस टाइप की जॉल्ट की जरूरत है। तो एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझोगे। इफ यू कांट बी अ गुड एग्जाम्पल यू विल जस्ट हैव टू बी अ हॉरिबल वार्निंग। देखो ऑपोजिट आइडियाज है, राइट? गुड एग्जाम्पल के साथ हॉरिबल वार्निंग, लेकिन आप देखो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि ये ऐसा लगे कि एज इफ इट इज अ शॉकिंग, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट गुड एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिबल वार्निंग, तो हमें वार्निंग ही देना होगा, वार्निंग भी होना चाहिए। So it is an apparent contradiction, but the inner meaning is very clear if we read it from the, from a very critical mindset. Okay. Next example देखो, the child is the father of man. तो ये भी एक टाइप के शॉक है कि चाइल्ड कह रहे हो और फादर भी कह रहे हो, तो एक चाइल्ड एक फादर कैसे हो सकता है? वो तो बच्चा है, राइट? तो इसका क्या मीनिंग है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, मीन्स जो आज का चाइल्ड है वो ही फ्यूचर का फादर होगा, राइट? दैट इज द इनर मीनिंग। सो इनर मीनिंग कुछ और है, लेकिन सेटिंग ऐसा है कि हमें सेंटेंस को पढ़ने में थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा कंफ्यूज लगे, है ना? फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, वेरी गुड एग्जांपल, हम हमेशा ये यूज करते हैं। तो आप फेलियर भी कह रहे हो और आप सक्सेस भी कह रहे हो, तो फेलियर होना, फेल करना मतलब बहुत बुरी बात है, तो फेल कैसे हमें सक्सेस की ओर बढ़ा सकता है ना? सो अपैरेंटली कॉन्ट्राडिक्शन है आइडियाज में, लेकिन इनर मीनिंग क्या है कि फेलियर्स आपको अवेयर करता है आपकी मिस्टेक्स के बारे में, और आप जितने बार फेलियर होगे आपको एहसास हो जाएगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, और आप उस मिस्टेक को करेक्ट करते करते जाओगे तो एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। दैट इज वाई फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो इनर मीनिंग कुछ और है, राइट? प्राइवेट वाइसेस आर पब्लिक वर्च्यूज, दिस इज ऑल्सो एपिग्राम, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है। The more corrupt the state, the more numerous the laws. तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है। स्टेट करप्ट अगर है तो उसमें लॉलेसनेस होना चाहिए, तो लॉ कैसे होगा? तो इसका क्या मतलब है कि करप्शन जितना बढ़ जाता है स्टेट में, उतना ही लॉज का एनफोर्समेंट बढ़ जाता है, ताकि करप्शन को थोड़ा इन दैट सेंस हाइड करा जा सके, ठीक है? सो द मोर करप्ट द स्टेट, द मोर न्यूमरस द लॉज। यस, नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स क्या चीज है? कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मीनिंग लैडर। ओके, वर्ड्स और आइडियाज व्हिच आर अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, आल्सो कॉल्ड ऑक्सेसिस। तो क्लाइमैक्स का एक और टर्म है ऑक्सेसिस। ओके, सो इसका क्या मीनिंग है क्लाइमैक्स का? क्लाइमैक्स में क्या होता है कि धीरे धीरे एक घटना ऊपर की तरफ जाते हैं, एंड की तरफ। क्लाइमेक्स का भी यही मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में है, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज है, लोएस्ट इंपॉर्टेंस, वो सबसे नीचे है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे हाई लेवल पर है, ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ, जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हम असेंडिंग करते हैं, है ना? स्टेयरकेस पर हम असेंडिंग ऑर्डर पर जाते हैं। तो ये होता है क्लाइमैक्स, कि जब आप धीरे धीरे एक लो लेवल के आइडिया से आप हाई लेवल के आइडिया तक जा रहे हो, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ था क्लाइमैक्स का।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लुक अप द स्काई, इट्स अ बर्ड। सो 3 स्टेप्स आर देयर। पहले लुक, देन कहां पर देखूं, अप टू द स्काई, देन क्या देखूं, इट्स ए बर्ड। वेरी गुड एग्जाम्पल, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर। So I came is the lowest step. Then the next step is I saw, and the next step is I conquered. This is the final step, right? So this is how climax की धीरे धीरे करके importance बढ़ती जा रही है. To strive, to seek, to find, and not to yield. Very famous statement by Tennyson. To strive, to seek, to find, and not to yield. तो strive करना है, स्ट्रगल करना है। किसके लिए स्ट्रगल करना है? कुछ खोजने के लिए, सीख करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए, लेकिन हमें यील्ड नहीं करना है, हमें सरेंडर नहीं करना है। तो स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, एंड नॉट टू यील्ड। यस, ही हैज लॉस्ट हिज जॉब एंड हिज फैमिली। तो देखो ये भी एक क्लाइमैक्स है कि पहले उसका जॉब लॉस हुआ, उसके बाद उसका फैमिली लॉस हो गया, राइट? तो जॉब से फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जॉब इज लेस इंपॉर्टेंट, जॉब को पहले बोला गया, उसके बाद है फैमिली, तो उसे बाद में बोला गया। दैट इज क्लाइमैक्स। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। You can clearly see the ascending order. Of the people is the lowest thing, by the people and for the people, that is the supreme thing. Okay, we will hear him, we will follow him, and we will die with him. हम उसे सुनेंगे, उसके बात को, उसको फॉलो भी करेंगे और उसके लिए अपना जान भी दे सकते हैं। तो जान देने का जो बात है वो एकदम हाई पॉइंट है, क्लाइमैक्स है, इसलिए वो सबसे एंड में। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज एंटी क्लाइमैक्स, जस्ट अपोजिट टू क्लाइमैक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेथोस। तो इसमें क्या होता है? सडन फॉल फ्रॉम ए हायर पोजिशन टू द लोअर, डिसअपॉइंटिंग एंड अनएक्सपेक्टेड एंड, पर्पस इज टू क्रिएट हिलेरियस इफेक्ट। बेथोस का क्या मीनिंग है कि बहुत ही एक हाई पोजीशन पर आप खड़े हो, ठीक है, आप एक बहुत ही हाई पोजीशन पर हो, उसमें से आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो एक लोअर पोजीशन में, डायरेक्टली जंप कर रहे हो, बीच में कोई स्टेयर केस वगैरह नहीं है। तो दैट इज नोन एज बेथोस। और एंटी क्लाइमैक्स, एक सडन फॉल होता है। तो आप समझ लो कि आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़े हुए हो और आप उसमें से डायरेक्ट आप जंप कर रहे हो उस बिल्डिंग से एकदम नीचे में। तो वो क्या है? वो एक एंटी क्लाइमैक्स है कि आप एक टॉप आइटम से आप एकदम नीचे जा रहे हो और विदाउट यूजिंग एनी स्टेयर, एनी स्टेप्स, आप डायरेक्टली नीचे फॉल कर रहे हो, राइट? सो दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। तो इसका मेन पर्पस होता है टू क्रिएट हिलेरियस इफेक्ट। ओके, अनएक्सपेक्टेड एंड होता है एंड टू क्रिएट हिलेरियस इफेक्ट। तो एग्जांपल्स देखो, समझ में आएगा। ही लॉस्ट हिज जॉब, हिज फैमिली एंड हिज टी शर्ट। तो उसका जॉब चला गया, उसका फैमिली चला गया एंड उसका टी शर्ट भी चला गया। अब देखो, जॉब एंड फैमिली आर वेरी सीरियस थिंग्स, लेकिन टी शर्ट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, राइट? सो देखो, सडन फॉल हो रहा है एक सीरियस आइडिया से कि ही हैज लॉस्ट हिज जॉब, ही हैज लॉस्ट हिज फैमिली, एंड देन सडनली द होल आइडिया बिकम्स रिडिक्यूलस व्हेन वी मेंशन टी शर्ट, है ना? तो देखो, दिस वाज अ फेलो टू विन, टू फाइट एंड टू स्लीप। यहां पर फॉल हो रहा है, तो हम उठ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सडन फॉल हो रहा है। तो टू विन, टू फाइट इज समथिंग सीरियस थिंग। आप किसी को जीत रहे हो, किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो और आप सो भी रहे हो। तो ये क्या होता है? ये एंटी क्लाइमैक्स है, बेथोस। When husbands or when lapdogs breathe their last, very famous line from Rape of the Lock by Pope, right? तो पोप ने क्या बताया कि when husbands and when lapdogs breathe their last, फीलिंग सेम है, जब हस्बैंड का देहांत हो रहा है और जब लैपडॉग्स का देहांत हो रहा है। तो देखो, हस्बैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है लाइफ का, और लैपडॉग्स इज अ वेरी इन दैट सेंस वेरी अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो सडन फॉल हो रहा है, राइट? शी फेल्ट डिप्रेस्ड, wept for a while and went to a parlor. उसका बहुत डिप्रेशन आया था, वो थोड़ी देर तक रोया, फिर वो पार्लर में चले गए। ये कैसा फॉल है? ये बहुत सीरियस इश्यूज है कि उसके माइंड में डिप्रेशन है, वो रो रहा है अपने डिप्रेशन के लिए, और फिर वो पार्लर भी जा रहा है। तो दैट इज द सडन फॉल एंड अनएक्सपेक्टेड एंड इट ऑफन इवोक्स लाफ्टर। हमें हंसी आ रही है सेंटेंस को पढ़ के, है ना? ही इज अ रोग, अ लायर एंड ए ट्रिकस्टर। अब देखो, ये ही लव्स हिज वाइफ एंड फ्रूट जूस। तो अपनी पत्नी को वो जितना इंपॉर्टेंस देता है, एक फ्रूट जूस को भी वो उतना ही इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए एक सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि ही लव्स हिज वाइफ एंड फ्रूट जूस। ओके, सो दैट इज द थिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फिगर्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। अब इमेजिनेशन की बात है, ठीक है? तो इमेजिनेशन में क्या होता है? एपोस्ट्रॉफी।
ठीक है। एपोस्ट्रॉफी इज द वेरी फर्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच। तो एपोस्ट्रॉफी का मतलब है एन एक्सक्लेमेटोरी फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, इसमें एक डायरेक्ट इम्पैशन्ड एंड शॉर्ट एड्रेस टू समवन हु इज एब्सेंट फ्रॉम द सीन। तो आप किसी को ये एड्रेस कर रहे हो लेकिन वो सीन पर प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है सीन से, राइट, तो उसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। एक डायरेक्ट इम्पैशन्ड और शॉर्ट एड्रेस है जो आप जिसको एड्रेस कर रहे हो वो सीन पर नहीं है लेकिन आप उसे वो एब्सेंट है तो आप उसे उद्देश्य करके कुछ बता रहे हो, सो दैट इज एपोस्ट्रॉफी। The addressee can be an idea or dead person, nature or any kind of inanimate object. तो addressee कोई भी हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर आइडिया भी हो सकता है, कोई डेड पर्सन भी हो सकता है, कोई नेचुरल एलिमेंट भी हो सकता है और एनी काइंड ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो सकता है। एपोस्ट्रोफी का बहुत ज्यादा यूज लिटरेचर में होता है। आप एग्जाम्पल देखो एक तो, ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब देखो आप स्टार को बता रहे हो तो स्टार अपनी आपके सामने मतलब बैठकर सुन नहीं रहा, राइट, सो आप स्टार को एपोस्ट्रॉफी कर रहे हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ओके, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटोरी एड्रेस, ओके। सो स्टार इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, तो आप एक नेचुरल ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हो और एक इम्पैशन्ड एड्रेस कर रहे हो। इम्पैशन्ड मीन्स कि जिस एड्रेस में कोई पर्टिकुलर इमोशन आपके मन का जो एक्सप्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हियर आप अपनी वंडर एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो आप बहुत सरप्राइज्ड होकर कह रहे हो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये आपकी सरप्राइज है, आपकी वंडर है। नेक्स्ट, ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, ओ पार्डन मी, ये आप बहुत ही सैड टोन में कह रहे हो कि ओ पार्डन मी, मुझे माफ करो, दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, ओके, सो ओ पार्डन मी, आप अर्थ को एड्रेस कर रहे हो, वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, राइट, सो अर्थ इज एन इनएनिमेट थिंग, तो आप उसे एड्रेस कर रहे हो, ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ये वर्ड्सवर्थ की फेमस सॉनेट है मिल्टन के ऊपर, उसमें से है। तो देखो वर्ड्सवर्थ एड्रेस कर रहा है मिल्टन को, मिल्टन इज ऑलरेडी डेड, तो वो एक डेड पर्सन को बता रहा है कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, so it is also an apostrophe and an exclamatory mark is there at the end of every apostrophe, right? Next is the trumpet of prophecy, O wind, this is a line from Ode to the West Wind, Ode to the West Wind by Shelley। तो वेस्ट विंड में शेली वेस्ट विंड को एड्रेस करके कह रहा है कि द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ओ विंड, so this is an impassioned address to the wind, okay, the west wind who is a kind of who is not present, who the wind cannot be seen, right, but the poet is addressing the wind, oh happy dagger this is thy sheath, this is a line from Romeo and Juliet, ये जूलियट का स्पीच है, oh happy dagger, तो वो एक डैगर को एड्रेस कर रहा है, oh happy dagger this is thy sheath। So these are all examples of apostrophe. There are innumerable examples, you can find it in every literary pieces। नेक्स्ट जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल का क्या मतलब है? एन एक्साजरेटेड एक्सप्रेशन, जब आप बढ़ा चढ़ा के कुछ चीज बता रहे हो, एन एक्साजरेटेड एक्सप्रेशन। ग्रीक वर्ड विच मीन्स एक्सेस, ग्रीक वर्ड विच मीन्स एक्सेस, इट शुड नॉट बी टेकन लिटरली, तो लिटरल मीनिंग इसका नहीं है लेकिन आप इसे यूज कर रहे हो टू गिव सम काइंड ऑफ एक्साजरेशन, राइट। ऑफन क्रॉसेस द लिमिट ऑफ रियलिटी एंड प्रेजेंट सम अनरियलिस्टिक थिंग, ओके। magnifies a thing, an idea beyond its natural bound, so these are the main features of hyperbole। अब hyperbole का एग्जांपल्स क्या है देखो, his tale would cure deafness, ये नहीं हो सकता, किसी का टेल किसी का डीफनेस क्योर नहीं कर सकता, डीफनेस इज अ फिजिकल प्रॉब्लम, राइट। लेकिन हाइपरबोल में मैं ये कह रही हूँ कि हिज टेल वुड क्योर डीफनेस, व्हिच मींस दैट हिज टेल इज सो एन्चैंटिंग, हिज टेल इज सो मेस्मराइजिंग दैट इट कैन इवन क्योर, इट कैन इवन अट्रैक्ट अ डीफ पर्सन's attention, हिज टेल वुड क्योर डीफनेस, राइट। आई हैड टू वेट इन द स्टेशन फॉर 10 days, एन इटर्निटी। नाउ आप 10 days की बात कर रहे हो, वो इटर्निटी कभी नहीं हो सकता, तो ये हाइपरबोल है। इसका मतलब ये है कि मैं इतने दिन तक स्टेशन में हूं कि मुझे लग रहा है कि मैं जीवन भर स्टेशन में ही हूं, तो हम ये बात हमेशा कहते हैं ना अपनी लाइफ में, तो आई हैड टू वेट इन द स्टेशन फॉर 10 days, एन इटर्निटी, राइट। नेक्स्ट,
Hill grew darker at their frown. This is also hyperbole. Thou by the Ganges side should rubies find. This is a line from To His Coy Mistress. To His Coy Mistress by Andrew Marvell. Thou by the Ganges side shouldest rubies find. तो देखो गंगा के साइड में रूबी नहीं मिलता है ना, लेकिन ये हाइपरबोल है. Thou by the Ganges side should rubies find. She is going to die of shame, which means that she is extremely ashamed. She is extremely embarrassed. So shame के लिए कोई मर नहीं जाता, ये हाइपरबोल है, लेकिन हम कह रहे हैं to describe the intensity of emotion. Okay? I will love you till China and Africa meet, which means that I will love you forever. That is the hyperbolic statement. तो चलो, हाइपरबोल क्लियर है. अच्छा, तो हाइपरबोल के बाद है पैथेटिक पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, हाइपरबोल के बाद है पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब है कि नेचर और एनी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लिविंग बीइंग. जब कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को कोई लिविंग बीइंग का एट्रीब्यूट दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. बहुत यूज होता है लिटरेचर में. It shows the author's imagination. Often human emotions are expressed metaphorically. So human emotions भी metaphorically expressed होता है personification से. ठीक है? Yes. So that is the thing. तो एग्जाम्पल देखो personifications का. The day has wept its fill, spent its store of silent sorrow. This is a poem written by Emily Bronte. Mild the mist upon the hill is the name of the poem. अब देखो द डे हैज वेप्ट, तो जो दिन है वो वीप कर रहा है, वो रो रहा है. तो दिन तो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, तो वो कैसे रो सकता है? रोना तो ह्यूमन बीइंग्स का क्वालिटी है, लेकिन हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं ड्यू टू पोएटिक पर्पस एक ह्यूमन बीइंग्स का एक क्वालिटी को एक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. तो इसे हम कह रहे हैं पर्सोनिफिकेशन. द डे हैज वेप्ट इट्स फिल, स्पेंट इट्स स्टोर ऑफ साइलेंट सोरो. द पिरामिड्स हैव फॉरगॉटन द नेम्स ऑफ देयर फाउंडर्स. The pyramids have forgotten the names of their founders. तो देखो pyramids have forgotten. So pyramid तो एक a kind of abstract a kind of inanimate object. तो pyramid कैसे याद रख सकता है? याद रखना, भूल जाना, ये तो human qualities है. ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि pyramid भूल गया उसके फाउंडर कौन थे. तो इसका क्या मतलब है कि it is built a long time ago, right? So we are attributing a human quality. To remember, to forget, these are all human qualities. So we are applying it onto the pyramid, which is an inanimate object. History speaks out vividly in this place. हिस्ट्री बता नहीं सकता, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, वो तो इनएनिमेट थिंग है, राइट? हिस्ट्री स्पीक्स आउट, और स्पीकिंग ह्यूमन क्वालिटीज है, तो हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई. अब देखो लाइटनिंग इज द फेनोमेना ऑफ नेचर. तो लाइटनिंग डांस कर रहा है, तो डांस तो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, डांस बर्ड्स करते हैं. ठीक है, तो हम एक ह्यूमन बीइंग्स के एट्रीब्यूट को एक लिविंग बीइंग के एट्रीब्यूट को रादर हम आरोप कर रहे हैं किसके ऊपर? लाइटनिंग के ऊपर. द विंड हाउल्ड ऑल द नाइट. सो हाउल इज एसोसिएटेड विथ द साउंड्स मेड बाय टाइगर और लायन. तो वो हाउल करता है, लेकिन यार विंड हाउल कर रहा है, which means a storm is coming. The chocolates are calling me. Okay, the chocolates are calling me. So chocolate हमें कॉल नहीं कर सकता, chocolate तो एक inanimate object है. Chocolates are calling me means I am very much eager to eat the chocolate. Okay. Yes, so these are the examples of personification. अब next क्या है? Pathetic fallacy. Pathetic fallacy. तो पैथेटिक फैलासी का क्या एग्जाम्पल है? देखो, पैथेटिक फैलासी इज अ टर्म कॉइन्ड बाय रस्किन बॉन्ड इन हिज एसे मॉडर्न पेंटर्स. मॉडर्न पेंटर्स में उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया. नेचर इज शोइंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन एक्शन. पैथेटिक फैलासी में थोड़ा डिफरेंट है पर्सोनिफिकेशन से. पैथेटिक फैलासी में क्या हो रहा है कि नेचर इज शोइंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन एक्शन, लेकिन पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि आप एक ह्यूमन एट्रीब्यूट को एक लिविंग बीइंग के एक एट्रीब्यूट को आप एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर डाल रहे हो.
लेकिन पैथेटिक फैलासी में नेचुरल कुछ सीन्स, नेचुरल कुछ ऑब्जेक्ट्स वो डेलिबरेटली इंटरवीन कर रहा है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है, वो इंटरवीन कर रहा है ह्यूमन नेचर में, ठीक है। सो द एट्रीब्यूट ऑफ ए लिविंग बीइंग अप्लाइड टू नेचर। तो कैसे होता है देखो, एंड येट डार्क नाइट स्ट्रैंगल्स द ट्रैवलिंग लैम्प। सो डार्क नाइट इज स्ट्रैंगलिंग द ट्रैवलिंग लैम्प। तो देखो नाइट स्ट्रैंगल नहीं कर सकता, नाइट स्ट्रैंगल नहीं कर सकता। सो स्ट्रैंगल करना यू नो ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन डार्क नाइट स्ट्रैंगल्स द ट्रैवलिंग लैम्प। तो एज इफ डार्क नाइट इज इंटरवीनिंग इनटू सम ह्यूमन एक्शन। तो वो मतलब अपनी मर्जी से इंटरवीन कर रहा है नेचर, राइट। द रिवर साइड सीइंग माई सॉरो। सो माई सॉरो इज माई सॉरो, okay, it is inside my heart, but the nature is taking interest in my action and the river is sighing. The river is also expressing sympathy for me, okay. The somber cloud darkened our mood. तो देखो क्लाउड तो अपने आप में है स्काई में, और हमारे मूड डार्क है, हमारी मूड सॉम्बर है। तो क्लाउड मतलब डेलिबरेटली इंटरवीन कर रहा है कि ऐसे कि हमारे मूड खराब है, इसलिए क्लाउड भी आज बहुत सॉम्बर लग रहा है ना। तो somber cloud मतलब cloud is intervening into human mind. The flowers in the grave drooped with sadness. तो देखो ग्रेव में तो किसी का कॉफिन है, तो उसके डेथ के लिए फ्लावर्स भी मोर्न कर रहे, वो भी ड्रूप्ड है विद सैडनेस, राइट। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पैथेटिक फैलासी. Okay, so yes, that is the end of today's lecture. Please subscribe to the channel to get more informative videos like this. And I am again saying that as it is the recorded video, students, it is the recorded class, so I am not I can't interact with you. This is not live class, this is a recorded class, so I can't interact with you. ओके, बट इस क्लास से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो जो आप लाइव में मुझे नहीं पूछ सकते, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर नेक्स्ट क्लास में भी मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको बतानी चाह रही थी. Yes, so that is the end of today's class. Thank you very much. This is the last day of 2020. So please enjoy it and advance Happy New Year to all of you. So please use this referral code BRISHTI10 to get 10% discount in your overall price, and you can also use this referral code to unlock your free classes. Okay, so also please do that. Yes, so and these are the 2 Telegram channel link which I am again requesting you please join, so that you will be notified each and every classes of mine. Okay. So आप जरूर से join कर लेना इन दोनों Telegram channels को. ठीक है students, have a nice day. See you soon in my live class. So advance Happy New Year सबको, और have a nice day. Bye bye. Thank you so much for watching.